in today's media conference with Lal Goyal, which is brought to you by V4 News, Global TV, V4 Stream, Malnadu TV, News Gaon Se, Samvad Sarokar News, Organ Donation India Foundation and Gyan. Our endeavor is to enlighten you with the current topics every day. But today being Sunday, as you all know, today is the day for edutainment. That is the education and entertainment. And today we have a very, very special guest with us. And before I will go to them, I would like to inform you that today the world is celebrating, rather observing International Human Solidarity Day. The International Human Solidarity Day, IHSD, observed on December 20th, is an international annual unity day of the United Nations and its member states, introduced by the General Assembly during the 2005 World Summit. It was established on December 22nd, 2005. Its main goal is to recognize the universal values of poor by making the associated countries aware of reducing poverty and to formulate its countermeasures as signed by the independent states. IHSD is a part of World Solidarity Fund and United Nations Development Program focused on to achieve goals set for worldwide poverty eradication. We hope by observing International Human Solidarity Day, the global poverty will be reduced, if not eradicated. Now we are coming to the today's topic, and today we have a very, very important topic. Rather, I will say we are going to have it very well-known personalities with us. Surtal with Preeti Pinky. Preeti and Pinky are the renowned playback singers and leading Dandiya queens. But as you know, our custom is very clear that once we will start our program, it will be started with the prayer. So I welcome both the Preeti and Pinky on my show. Welcome Preeti ji and Pinky ji, हमारे शो पे आपको आने का बहुत बहुत धन्यवाद. हम चाहेंगे कि पहले शुरुआत आप एक प्रार्थना से करें, जिसे आप शुरू करें, प्लीज. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही आपने शुरुआत इतनी अच्छी की है. आई एम श्योर हमारे सब व्यूअर्स को बहुत पसंद आया होगा. Preeti and Pinky are the indie pop duo singers. The sisters hail from a Gujarati family. This duo had started singing at very young age when they were 5 and 7 years old. They gave their first live performance at the age of 7 and 5 respectively in the city of Ahmedabad. Preeti ji and Pinky ji, इतनी छोटी उम्र में एक परफॉर्मेंस देना लाइव बहुत ही मुश्किल का काम हुआ होगा. तो क्या आपने अपना शुरू से, मतलब आई विल नॉट से कि पैदा होते ही, पर 2-3 साल की उम्र से ही म्यूजिक सीखना शुरू किया, और किस तरह आप इस में, या आपकी फैमिली में म्यूजिक था, बताएं प्लीज. गोयल जी, सबसे पहले शुरुआत ऐसी हुई कि जब मैं 3 साल की थी and Pinky was like just born actually, but that was the time कि जब वो गाना सारे गामा पा था, एक बड़ा फेमस सा गाना था पुराना, तो कहीं बज रहा होगा, तो मॉम बता रही थी कि मैं सारे गामा पा कर रही थी. तो देन दे सडनली रियलाइज कि अरे ये तो गाती है. एंड हम लोगों के हेरिटेज में आया हुआ है. मेरे दादा पंडित ओमकारनाथ जी के स्टूडेंट थे, जसराज पंडित के टाइम से उनके साथ थे. एंड इट केम टू माय फादर. माय फादर वाज ऑल ओवर गुजरात फर्स्ट प्राइज विनर इन सिंगिंग, बट ही कुडंट परस्यू इट एज अ करियर. और हम लोगों में भी फिर ये आया था गाने का. एंड जब पिंकी बहुत छोटी थी और मैं गाती थी, जैसे 2 साल 3 साल की,
तो ये पता चली कि इसको लगा कि प्रीति क्या कर रही है जो मैं नहीं कर रही हूँ। ये मेरी दादी के साथ रहती थी, तो इसको गुजराती आती थी और मैं हिंदी गाती थी मम्मी के साथ। तो इसने फिर वो मुझे देख देख के इसने भी गाना शुरू कर दिया था। एंड जब 5 साल के हम लोग हुए तो पापा के एक दोस्त ने कोई इवेंट रखा था। जैसे स्टेज पे गाना कभी ये नहीं था, लेकिन मेरे पापा सिंगर, मतलब गाने का शौक था। तो जब भी घर पे गाते थे हम लोग रियाज करने पापा के साथ बैठते थे। तो जो हुआ ये कि उस वक्त पापा के दोस्त ने एक शो रखा था और वहां पे सिंगर नहीं आए थे, पूरे ऑर्केस्ट्रा वगैरह आ गए थे। तो उन्होंने पापा को बोला, किरण मैं तेरे बच्चों को लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरे सिंगर नहीं आए। तो पापा बोलते हैं, अरे मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं, इन्होंने कभी स्टेज पे नहीं गाया है। बोले नहीं नहीं वो कर लेंगे, जैसा वो लोग गाएंगे वो पीछे वाले बजाएंगे, कर लेंगे वो, मतलब लास्ट मिनट होता है ना। और बस उसी टाइम पे ऐसा हुआ कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम, और हम लोग तो बहुत एक्साइटेड थे। हमें ये नहीं पता थी कि अरे हमें गाना है, लोग होंगे, बस हम लोग गाने जा रहे हैं, ये था। Would like to add one thing is my father was a singer और मेरे दादा भी सिंगर थे, पंडित ओमकार नाथ जी के शिष्य थे। जी जी। तो कितना अच्छा आपने शुरुआत में गुरु जी की वो की। तो इसका मतलब जो कहा भी जाता है कि फैमिली ही, घर परिवार ही सबसे पहले गुरु जो होते हैं वो माता पिता ही होते हैं। तो आप लोगों के जो गुरु शुरू के गुरु रहे संगीत के, वो आपके पिताजी और दादाजी रहे। बहुत ही जी। बढ़िया। कुछ आपको याद आ रहा है कि आपने क्या गाना गाया था उस वक्त उस स्टेज पे? हम लोगों ने उस टाइम डांडिया गरबा का गाना गाया था। गरबा होते ना, जी तो जी जी पहले तो क्या होता था, मंडली आती थी, बड़े बड़े स्टेज नहीं होते थे। स्टेज होता था बीच में, साइड में होता था ऐसे एक जगह पे, और वहां पे लोग एक ही सर्कल में घूमते थे। जी जी तो उस तरह से जब स्टेज पे था तो हमें इतना याद है, हम लोग छोटे छोटे थे। मेंडोलियन था तब, कीबोर्ड्स नहीं हुआ करता था, मेंडोलियन हुआ करता था, शहनाई थी और तबला था, तबला ढोलक थे। जी जी। तो मम्मी बताती है हम लोग जब वो गाते थे तो एक लाल दरवाजे करके एक गुजराती बड़ा फेमस गाना था, वो हम लोगों ने गाया था। एक एक आध लाइन सुना सकती हैं उसकी? छोड़े जी छोड़े। जी जी। एक लाल दरवाज है तंबू तोड़िया रे लोल, एक लाल दरवाज तंबू तोड़िया रे लोल, अहमदाबादनी नगरी एने फरते कोटे कागरी, माणिक चौकनी माही गुलजारी जोवा हाली, ये हो તમે ના જશો જોવાને ત્યાં બચ્ચો બડો મિજાજી, એકે લાલ દરવાજે તંબુ તોડિયા રે લોલ। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। और पहले जमाने में तो बड़े बड़े स्टेज भी नहीं होते थे, डीजे वगैरह कुछ नहीं होते थे। बहुत ही और बहुत सादगी से और बहुत ही भक्ति भाव से गरबे होते थे। मुझे याद है मैं 1961 में अहमदाबाद गया था, 1961 में। तो उस वक्त जब और वो वक्त था नौ दुर्गों का, तो वहां देखते थे कि उस वक्त इसी तरह सब लेडीज जो हैं वो लगा के बीच में आपने जैसे बताया, और फिर चारों तरफ सर्किल बना के गाती रहती थी और डांस करती थी। Now I would like to move to, they also sang for many Bollywood films. They are one of the very few singers who have won Ashirwad Award and were nominated for Filmfare Award under Best Singer category for their debut film Har Dil Jo Pyar Karega. And that song and that big movie was picturized on Salman Khan, Rani Mukherjee, and Preeti Zinta. It was the song was a cult at that time. Every household, all the children and even the adults were singing that song. I still remember my children are all crazy about that song. And when today I mentioned about this song to my daughter who is in USA, so immediately I just said that they are coming. Bole, oh, the same who has sang that Pia Pia. I mean, yes. So can you now sing that most popular song? Everybody is waiting for that song. That is Pia Pia. Surely. पिया पिया गाना हम लोगों का एक एल्बम आया था पहले, झूमे जी जहां। तो जी वो हम लोग जैसे छोटे थे और फिर आपको बताया म्यूजिकल शो, फिर
बच्चों के एक ऑर्केस्ट्रा का शो होता था अलबेला करके, तो वहां पे सारे बच्चे ही गाना गाते थे अहमदाबाद के। तो हम लोग उधर गाते थे, फिर हम लोग बॉम्बे आए तो वहां पे अन्नू जी को मिले थे और उनके लाइव शोज में हम लोग गाना गाते थे। आई एम जस्ट टेलिंग हाउ पिया पिया केम इन टू Yes. आवर लाइफ। जी। तो अनु जी के शो हम लोग करते थे। फिर हम लोग अहमदाबाद चले गए क्योंकि डैडी ने बताया कि पहले पढ़ाई करेंगे आप, उसके बाद गाना परस्यू करेंगे। तो उस हिसाब से हमने अहमदाबाद से जब बॉम्बे शो में आए, आते जाते रहते थे, कंप्लीट कर ली पढ़ाई और उसके बाद फिर आए तो पिंकी ने बोला चलो एक एल्बम बनाते हैं। तो झूमे जहां करके एक एल्बम बनाया हमने, और जिसका वीडियो आया था जो कुणाल कोहली साहब ने बनाया था। तो अनु जी की वाइफ बोलती है, अरे ये देखो वो दो बच्चे हैं जिन्होंने अपने शो में आते हैं। एंड तभी अनु जी ये स्क्रिप्ट पे वर्क कर रहे थे, हर दिल जो प्यार करेगा, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा के। तो उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला देखो आई डोंट प्रॉमिस यू बच्चों कि ये गाना आप गाओगे, लेकिन अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पसंद आया तो डेफिनेटली आप ही लोग गा रहे हैं। एंड दैट्स हाउ वी गॉट पिया पिया इन आवर लाइफ, Oh, व्हिच मेक very अस good. प्रीति पिंकी। हम्म। तो अब मैं आपको पिया पिया की 2 लाइनें सुनाती हूँ। पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया, पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया, सुबह शाम कर मेरा जिया, जिया 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 जिया, पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया। Very nice. And this song became very hit at that time. Although you could not won the award, but it was very honored that you were nominated in your first song in the Filmfare. That is a very, very big thing, big achievement for a singer at least. एक्चुअली यस, बिकॉज आप अगर एक लोकल सिंगर हैं और आपको एक प्लेबैक जी। सॉन्ग मिल रहा है और आपका लाइफ का फर्स्ट सॉन्ग है और जो नॉमिनेट होता है, तो मतलब वो अवार्ड से कम हमारे लिए बिल्कुल कम, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कम नहीं होता जी, बिल्कुल सही बात है। In addition to their popularity in India, they are also very well known in United States, Canada, and England. This musical duo seems to have found a complement in each other. Both sing almost as one voice. This duo is nothing less than prodigies in the real sense. Today, after 20 years of associating with the music of this country, they have debuted with their first indie pop album. The album is an interesting potpourri of Indian culture. इसके बारे में आप क्या बताएंगे? आपने इतनी फिल्मों में भी काम किया, उसके बाद अब आप पॉप में भी आ गई, तो उसका कुछ बताएंगे इसके बारे में, क्या जर्नी कैसे रही? जी, शुरू तो हमने पॉप से ही किया था। पहले हम लोग डांडिया का एल्बम बनाया था, फिर उस टाइम पे अलीशा चिनॉय, शेरॉन प्रभाकर, इन सब के एल्बम लाइक यू कैन लुक अप टू देम। तो पॉप एल्बम मडोना के थे, सिलीन डियोन बाद में थी, विटनी ह्यूस्टन। सो ऑल दिस वेयर लाइक हम लोग इनके गाने सुन सुन के बड़े हुए हैं। तो जब ये इन लोग का था तो हम लोग का भी था, हम लोग पॉप एल्बम बनाएंगे, हम लोग गाना गाएंगे। तो हमने अपना सबसे पहला एल्बम जो बनाया था वो जुमे जहां था। और वो उसमें क्या होता है, जब आप किसी मूवी के लिए गाते हैं तो आप एक कैरेक्टर के लिए गाते हैं जो ऑलरेडी मूवी में है, और उसके कैरेक्टर के हिसाब से आपको गाना पड़ता है। और जब आप एक एल्बम में गा रहे हैं तो उसमें आप अपने लिए गा रहे हैं, मतलब उस कैरेक्टर में आप ही हैं जिसके बारे में आप प्रेजेंट करते हैं, यू आर आइडेंटिफाइंग योर ओन सेल्फ। सो दैट इज हाउ पॉप एल्बम में जब हमने गाया था जुमे जहां में, तो दैट वाज आवर फर्स्ट एल्बम। और वो गाना उधर का पीपी पपीहा पीपी बोले, वो गाना उधर से हम लोगों ने पॉप जर्नी में एंटर किया। एंड देन केम पिया पिया विद अस। ओके, तो कुछ सुनाना चाहेंगे इसमें कोई सर? जी हाँ जी। हाँ, इसमें एक गाना था जो मौला मौला करके गाना है। इसके लिरिक्स, इट्स अ सूफी सॉन्ग। इसके लिरिक्स आप सुनेंगे तो मतलब बच्चन साहब ने खुद हमें बुला के, हम लोग साउथ फिल्म फेयर में गाने आए थे, तब हमने ये परफॉर्म किया था मौला मौला। तो बच्चन साहब ने हमें बुलाया तो उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि इसके लिरिक्स इतने अच्छे हैं कि मेरे रोए खड़े हो गए। तो बोले इसका कोई सीडी वीडी है तुम्हारे पास? तो हमने बोला नहीं सर, क्योंकि उस टाइम पे सीडी नहीं थी, कैसेट्स थी। तो बोले जब भी बनाओ मुझे जरूर भेजना।
और हमने उनको भेजी भी, मतलब कमिंग अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम बच्चन सर, इट्स समथिंग दैट वी वेरी स्टिल बिग। कैन फॉरगेट। या तो हम लोग वो गाना सुनाते हैं आपको जी इस जी एल्बम में। जी जी जी। वे मौला वे मौला वे, मौला मौला लगाई मैंने लोटू से, मौला मौला लगाई मैंने लोटू से, बन गई जोगन, बन गई जोगन, बुलाया जग तेरे भरोसे, मौला मौला बे मौला मौला, बे मौला मौला, बे मौला मौला, मौला मौला लगाई मैंने लोटू से, किसी नाम से भी मैं तुझको बुलाऊं, चाहे पढ़ो कलमा या फूल चढ़ाऊं, तू है दूर मुझसे कहाँ, तू है दूर मुझसे कहाँ, मौला वे भीगी है ये सांसें मेरी तेरी यादों से रे, मौला मौला बे मौला मौला, बे मौला मौला, बे मौला मौला, मौला मौला लगाई मैंने लोटू से, सा 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 सारे सारे रे 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 नी सारे रे सा सा नी सारे सा, रे मामा रे पापा पा नी 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 दा सा नी सा पा नी मा पर मा पा रे सा रे 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 सा नी सा रे सा नी सा रे सा बे मौला वे वे मौला वे। बहुत खूब, बहुत ही उम्दा। और इट्स वेरी डिफिकल्ट विदाउट एनी ट्रैक, विदाउट एनी म्यूजिक, अगर आप गा रहे हैं इस तरह गाना, क्योंकि ज्यादातर सब ट्रैक या म्यूजिक के साथ गाते हैं, तो जो वॉइस क्वालिटी है, मॉड्यूलेशन है, उतना नहीं पता चल पाता जितना अब आज आप बिना उसके गाए। आपने कितना, मतलब ये शो करता है कितना आप हाई स्टैंडर्ड, कितना क्वालिटी है आपके सॉन्ग्स में और आपके सुर में। थैंक यू सो मच। Their choice of music is so different from the current trend that it immediately brings them to notice. Their efforts to infuse Western pop with traditional Garba beats driven by lyrics that have a spiritual focus have got them listeners wherever they perform, be it South Africa to the USA to Canada to London and India too. So आपका जो ये सफर था, अहमदाबाद से शुरू हुआ, गुजरात से आप मुंबई आ गए, मुंबई में शो शुरू में आपने किया नूजी के, फिर आपने एल्बम की, जिससे फिर आपको फिल्म में आपने गाने गाने शुरू किए, उसके बाद आपने पॉप सिंगिंग भी शुरू की, फिर आप गरबे में भी आ गए, और गरबे में तो आप लोगों का नाम कहां पर कहां से कहां है इस वक्त सबको पता है। तो ऐसा क्या हुआ कि आप गरबे में भी आए? गरबा तो चलिए आपका ट्रेडिशन था, पर फिल्म से और फिल्म के बाद वो एक पॉप और पॉप से गरबा, ये तो बड़ा एक अजीब सा संयोग नहीं हुआ? ये बोलते हैं ना कि आपकी डेस्टिनी आपको ले जाती है। तो गोयल जी, मैं यही बोलूंगी कि हमने कुछ प्लान नहीं किया था, हम लोग सिर्फ आए थे कि हमको गाना है बस पिक्चरों में गाना है, एक थॉट ऐसा, मतलब आपके लिए सिंगिंग फॉर मूवीज आजकल जो होता है कि अरे हम लोग प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं, तो बस एक यही थॉट था, और गाना है, कुछ भी अच्छा गाना। तो हमारे गुरुजी भी बोलते थे कि जी। हर चीज आपको आनी चाहिए,
गाने में जैसे आपको क्लासिकल भी आना चाहिए, सॉफ्ट भी आना चाहिए, वेस्टर्न भी आना चाहिए। मतलब कि अगर बंदा बोलता है कि मुझे इस टाइप का गाना चाहिए, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि हमें ये नहीं आता है। आप बोले ठीक है, हम ये भी गाते हैं। तो मतलब दैट शोज योर वर्सेटिलिटी, versatile. वर्सटाइल, दैट योर वर्सिटी, वर्सेटाइल। या। तो ये आपको, आपने जैसे वहां पे तो आपके पिताजी ने और दादाजी ने आपको ट्रेनिंग दी, लेकिन आप मुंबई आ गए, तो यहाँ भी आपने कोई ट्रेनिंग ली किसी गुरु से या अपने आप ही? नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे गुरुजी हैं, बड़े अच्छे हैं। और ध्रुपद धमाल में जो वर्ल्ड में 10 लोग हैं, उनमें एक उनका नाम है। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि उन्होंने हमें ट्रेन किया है। और सुखदेव सुखदेव चतुर्वेदी जी, आपने जी जी, आप हाँ बिल्कुल जानते हैं। जानते हैं, वो हमारे शो में 2 बार आ भी चुके हैं, 3 बार बल्कि आ चुके हैं हमारे शो में। हाँ, बहुत ही। और जेम ऑफ अ पर्सन है। जी एंड हमारा उनके साथ जैसे घर वाला रिश्ता था, क्योंकि हम लोग भी नए नए मुंबई में आए थे, तो आपको ये चीज नहीं मालूम है, और मोस्टली दर्शकों को भी नहीं मालूम होगा, कि जब हमें पिया पिया गाना मिला था, तब हुआ ये था कि हमने सर को कॉल किया कि सर गाना हमारा पसंद आया है, मूवी में आएगा, हमारा कल रिकॉर्डिंग है, तो आप हमें प्रैक्टिस करवा देंगे? तो सर बोलते ठीक है। और 11 बजे थे रात के, हम लोग दौड़ के सर के यहाँ पे गए हैं, और वहां पे हमने सर को गाना बताया कि ये गाना है सर। तो सर ने बोला ठीक है। फिर सर ने हमको सरगम के साथ पूरा गाना तैयार करवाया। और भाभी बेचारी रात में 3 बजे तक जग रही थी, उन्होंने चाय वाय पिलाती रही। एंड आप गोयल जी बिलीव करो, लाइफ का फर्स्ट सॉन्ग है, और 1 टेक ओके था। अरे वाह, वन और बहुत। सर ने टेक। क्या प्रैक्टिस करवाया था? हम लोग पूरी रात इतने प्रैक्टिस सर के साथ किए कि वो गाना हम लोग को अनुज जी बोलते चलो माइक बैलेंस करते हैं बच्चों, अपनी आवाज एक एक बार गाओ और फिर टेक करेंगे। तो हम लोगों ने एक एक बार गाया। बोले ठीक है, आप एक रन थ्रू लेते हैं। ओके। और फिर उन्होंने बोला ओके कम, हो गया गाना। तो वी वर लाइक शॉक, फर्स्ट गाना ऑफ लाइफ, 1 टेक एंड फर्स्ट टेक ओके। एंड टू बी ब्लेस्ड आई कैन से कि it was nominated also, and people loved it so much कि they made us today and we are thankful to them. नहीं We नहीं, thankful to और Sukhdev. और साहब ने जैसे गुरुजी सुखदेव, पंडित सुखदेव चतुर्वेदी का नाम लिया, मैं भी बहुत, हम भी बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो मथुरा से आते हैं और मैं भी मथुरा से ही हूँ, तो उनसे काफी वो रहा। बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो, और गाने में Yes. तो उनका महारत है ही है। तो उनसे आपने सीखा, और इतनी बढ़िया बात है कि आप इतनी बुलंदियों पे पहुंच के भी अपने गुरु को इतने आदर से देखती हैं। आजकल की जनरेशन में ये होना बड़ा, कई बार बड़ा मुश्किल लगता है। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप लोग भी, और गुरु भी आपके, जिन्होंने आपको इतनी, और आपके माता पिता जिन्होंने इतनी अच्छी आपको संस्कार दिए हैं। आई मस्ट से कि द थिंग्स विच हैव बीन इनवाइटेड इन यू इज रियली कमेंडेबल, कि आप इतना और इसी वजह से आदमी ऊंचाई पे पहुंचता है। बहुत 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 बढ़िया चीज है। हम पे मैसेजेस आने शुरू हुए हैं। आई थिंक वी हैव लॉस्ट देम। No, आप लोगों का वीडियो ऑफ हो गया है। नहीं हम लोग आ गए हैं। अच्छा, हाँ गए। अच्छा, अब हम पे मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं। दिवपाल शर्मा, बहुत बढ़िया शुरुआत की है, नाइस स्टार्टिंग। पंडित रिजॉर्ट ने थम्स अप किया है। मुक्तावाश ने गुड मॉर्निंग टू ऑल, बहुत सुंदर। पंडित रिजॉर्ट, लवली सिंगिंग बाय द मेलोडियस सिस्टर्स, आईडी लोबो, नाइस सिंगिंग इवन विदाउट प्लेबैक म्यूजिक। दीपा मित्तल, लवली सिंगिंग। तो लोग बाग मैसेजेस भेजने शुरू कर रहे हैं, और क्योंकि थोड़ा सा इस बार फॉर्मेट डिफरेंट इसलिए हो गया है कि अभी तक जो हमारे पे सिंगर्स आते थे हर संडे को, वो औरों की आवाज के गाना गाते थे, और उसके संग ट्रैक चलता था। तो लोगों दूसरे, ये हमने थोड़ा सा एक नया, क्योंकि आपकी खुद की जीवनी और जिंदगी के बारे में लोगों को पता भी चले, और आप लोग इतने खुद ही अपने गाने गाए हुए हैं, तो बहुत ही, इट्स ए रियली नाइस टॉकिंग टू यू नाउ देयर। और after having 5 successful albums to their credit, which comprise 3 garba and 2 cover versions, they bring out Mujhko Piya Ki Yaad Sataye. This is a unique combination of rhythm and folklore music. इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, ये एल्बम जो था, उनके म्यूजिक डायरेक्टर थे डब्बू मलिक, जी अनु जी के
छोटे भाई जी, अमान मलिक के फादर। यस। यस, तो उन्होंने ये एल्बम किया था जो टी सीरीज से आया था, और ये एल्बम एक यूथ था। इस एल्बम में सारे जो गाने हैं वो काफी यूथ से कनेक्टेड थे, और इस तरह से इसके भी 3 वीडियो बने थे एल्बम के। एंड दिस वाज आल्सो वेरी सुपर एल्बम व्हिच एवरीबॉडी लव्ड। और ऐसे देखा जाए तो देखिए, अनु जी के साथ हम लोग ने प्लेबैक सिंगिंग किया, डब्बू जी के साथ हमने पॉप एल्बम किया, और अब्बू जी के साथ हमने वर्ल्ड टूर किए हैं। ओके, करीबन 5 से 6 वर्ल्ड टूर हमने अबू मलिक के साथ किए हुए हैं। तो तीनों ब्रदर्स के संग आपका जी वो जी, रहा है। और अलग अलग फील्ड में एसोसिएशन रहा इन तीनों के साथ। वी तो आर एक कुछ फॉर्चुनेट। सुनाएंगे उसके उसमें से कोई सुनाएंगे इस एल्बम में से? जी जी जी, ठीक। मुझको प्यारी याद हम्म। है। मुझको पिया की याद सताए, हर आहट पे दिल घबराए, कोई कह दे, ये कह दे सजन से, हो मुझको पिया की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप लोगों ने अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी कहीं मैंने पढ़ा था, सुना है कि कुछ आप ही बताएं उसमें, तो वो बहुत बेटर रहेगा कि क्या है आपका, क्या कनेक्शन है अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ? जी, नरेंद्र मोदी साहब गाने भी लिखते हैं, जिसको कहते हैं ना। अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने गुजरात के लिए गाना लिखा था, गर्व छे गुजरात। और ये गाना वी आर फॉर्चुनेट कि मैंने और पिंकी ने गाया हुआ है। तो और उन्होंने गरबे भी लिखे, उन्होंने काफी सारे एल्बम मतलब गरबे लिखे हुए हैं, जिनमें से हम लोगों ने 3 गाने गाए हुए हैं। प्लस उनकी बुक लॉन्च हुई थी, वो लॉन्च के सारे जो शोज वगैरह होते थे वो भी हमने किए हुए हैं। प्लस उन्होंने जब लता जी को फेलिसिटेट किया था मुंबई में, वो शो भी हम लोगों ने किया था, और हुआ ये गुजरात को रिप्रेजेंट किया था। जी, और उसमें जब मोदी जी आते हैं तब ये गुजरात वाला गाना हमेशा ही बजता है। तो वो तो हम सुनना ही चाहेंगे बिल्कुल भी, और हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे। द सॉन्ग विच वाज penned by our honorable prime minister Mr. Narendra Modi and sang by Preeti and Pinky, please. सुनेरी सवारी जेनी सतरंगी साज जेनी रूपेरी मेरडियाड़ी रात ए छे गुजरात, गर्व छे गुजरात। सुनेरी सवारी जेनी सतरंगी साज जेनी रूपेरी मेरडियाड़ी रात ए छे गुजरात, गर्व छे गुजरात। तो ये तो आज पहली बार हमें पता चला है, मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स को भी नहीं पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर गाने भी लिखे हैं उन्होंने, और वो गाने आपने गाए हैं, तो बहुत ही सौभाग्य और गर्व की बात है कि आपने उनके लिखे हुए गाने गाए हैं। तो ये तो, जी, हमारे लिए और भी, आपने क्योंकि प्रोग्राम भी जिसमें वो खुद। जी, नहीं, क्योंकि हाँ, वो बोलिए क्या उन्होंने कुछ। बहुत अच्छा लिखा है ये गाने के। आप आगे की लिरिक्स अगर यूट्यूब पे है गाना, अगर आप इसको सुनेंगे जी, तो पूरे वर्डिंग्स इतने अच्छे हैं, उसमें पूरा गुजरात प्रेजेंट किया हुआ है, डिस्क्राइब भी किया हुआ डिस्क्राइब है। किया है, और बहुत ब्यूटीफुल किया है। very nice, very nice. We are receiving the messages. ID Lobo, very delighted hearing the famous Preeti Pinky sing so melodiously. Deepak Goyal, nice tribute to Guru. Deepal Sharma, Thank you. nice singing without playback music, background. ID Lobo, interesting stories. So we are receiving the messages and people are appreciating, because see, that is what our purpose for this type of program is, to educate the people, to know that they should understand how much talent is there in our country. We always look towards the Western country
countries, but we should look in our own country. और जैसा आपने अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के गाने को बताया, तो इसमें गाने में गुजरात के बारे में उन्होंने लिखा है और गुजरात को हाईलाइट किया है। तो ये शो करता है कि कितना एक अपना प्रेम उन्होंने अपना जताया हुआ है पहले से, और अब वो नेशनल लेवल पे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत शीघ्र ऐसा भी हो सकता है कि आपको बुलाएं जब वो कोई ऐसा गाना लिखे हैं जो देश प्रेम से प्रेरित हो और उसको आप लोग गाएं। बड़ा सौभाग्य हम लोग का भी होगा सुनने के लिए कि वो उनका लिखा हुआ गाना आप गाएं देश के ऊपर भी। Both believes that luck has been on their side. Their songs express their devout faith in the oneness of the human spirit through music, which they claim is the ultimate universal language. Both these singers have to their credit songs not only in Hindi but also in Gujarati, Sindhi, Bhojpuri, Marathi, English and Malayalam. इतने सब लैंग्वेजेस में आप लोग गाना गा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे काफी दर्शक मलयालम वाले भी हैं और केरला से बहुत हैं, तो अगर थोड़ा सा सुना सके एक दो लाइन उसका, या आप बताएं कि क्यों इसमें आपने क्या कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से आपने ये सब गाने गा रहे, कहीं कोई ऐसा रोचक प्रसंग हो, इंसिडेंट हो? नहीं, क्योंकि क्या था कि हम लोग बचपन से शो करते हैं, तो हम लोग जहां भी जाते थे तो हम लोग को था कि वो लैंग्वेज हमको आनी चाहिए, मतलब उसमें हमको गाना आना चाहिए। हम लोग सीखते थे, खूब प्रैक्टिस करते थे। और गोयल जी एक बात बताते हैं कि केन्या में केनियन नेटवर्क टीवी पे मैं और पिंकी सेकंड इंडियन थे हु वेर लाइव ऑन केनियन टेलीविजन। पहले अपने पंकज उदास जी थे, आई सी, एंड सेकंड वाज मी एंड पिंकी कि जिनको उन्होंने लाइव टेलीकास्ट किया था, क्योंकि हमने उनकी लैंग्वेज में स्वाहिली में गाना गाया था। और we were like 16, I was 16, not even 16, 15 or 14 something. It's a very great thing to sing on a national TV of another country in their own language. Yes. It's not that easy, and that to live telecast. Live telecast. Oh, it's a very credible thing to both of you. Yes, yes. तो एक कोई सुनाए आप जो भी लैंग्वेज में सुनाना चाहें। मैं स्वाहिली सुनाती हूँ आपको, जी, और जी, फिर जी। अगर आप बोलेंगे तो साउथ इंडियन में भी सुना देती हूँ। जी ठीक है। Jambo, jambo bwana, habari gani? Mazuri sana, wageni wakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Kenya nchi nzuri, hakuna matata. इसका कुछ मतलब बता पाएंगे? जी, Jambo bwana, मतलब hello, how are you? Welcome to Kenya. Kenya is a beautiful country, And there's no problem. and there is no problem here, and everybody is fun loving. And Jambo is hello. I see. Very nice. Very nice. In these times where pop is the focal word for all the new music singing up, there is a pleasant variety in the music these two sisters have to offer. Preeti Pinky celebrated as imitable ethereal duo. They have performed live shows all over India and abroad, leaving the audience spellbound with their magical, captivating voices. They were able to win the heart of next-gen fans with their album Jhume Jahan of PP Papiya fame. ये कौन सा आपका था जो आपने नेक्स्ट जेन मतलब मिलेनियम जनरेशन को या उसके बाद की जनरेशन को आपने घुमा दिया, और झूमे जहां, तो इसके बारे में क्या, ये कैसे हुआ, क्यों, मतलब कैसे आपको ये मिला और आपने इसमें क्या किया? जी, ये गाना हम लोगों ने जब शूटिंग किया था ना जी, ये गाना हमारा फर्स्ट एल्बम का था, झूमे जहां का, पीपी पपीहा, एंड इट हैपेंड टू बी लाइक हमारा बैकग्राउंड था गुजरात से, तो हमने ये इंसिस्ट किया था मैग्ना साउंड कंपनी को कि आप इसको शूटिंग भी गुजरात में ही करें। तो गुजरात गवर्नमेंट नहीं, मैग्ना साउंड था। तो ये गाना जो था, सॉरी, ये माइलस्टोन में माइलस्टोन था। तो जब ये गाना शूटिंग हुआ, कुणाल कोहली साहब जिन्होंने सरफरोश, रेमो डिसूजा ने इसको कोरियोग्राफ किया था। ओके। और उमेश ने भी, तब ये गाना था, तो
पूरा ट्रेडिशनल इसका वीडियो है और गाना हम आपको सुनाते हैं जी। पी 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 पपी हाँ पी पी बोले, पी पी पपी हाँ पी बोले, सावरिया की याद का, सावरिया की याद का, हाँ नस नस में रस घोले, सावरिया की याद का, नस नस में रस घोले, पी पी पपी हाँ पी बोले। फिर जो इसका म्यूजिक आता है ना बड़ा ट्रेडिशनल, वो रावण हत्ता वगैरह यूज किया हुआ है। वीडियो भी मिलेगा यूट्यूब जी, पे। तो ये मतलब ये शो करता है कि आपने जैसे शुरू में बताया कि आपको तो गाना गाना है, कोई भी गाना, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो जैसे जो क्लासिकल सिंगर्स हैं वो कोशिश करते हैं सिर्फ क्लासिकल गाना गाएं, या जो एक अपना जिसकी जो भी एक ट्रेंड बन जाता है, लेकिन जी आपने तो हर तरह के गाने गाए, बहुमुखी जिसे कहा जाए हिंदी में, तो वो प्रतिभाएं आप पे हैं। They have been getting Best Dandiya Award for singing in Maharashtra since last 15 years. तो आप जो मुंबई में जो शोज होते हैं हर नवरात्रि में, मुझे भी पता है क्योंकि मैंने भी, आपको तो शायद आइडिया नहीं होगा, एक शो में हम भी एसोसिएटेड थे, दी क्लब में हुआ था अंधेरी में, बहुत साल पहले की बात है। तो और तब से, क्योंकि वो तब आप लोगों के शुरुआत के दिन थे, उसके बाद आप लोगों ने बोरीवली में शोज किए थे, तो अलग अलग जगह शो। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आपको अवार्ड मिलता है बेस्ट डांडिया का। तो डांडिया में जैसे आप आए, पहले से थे मतलब वहां, लेकिन वहां पे जो गुजरात में आपकी शुरुआत हुई, वहां तो बहुत ही धार्मिक और बड़े वैसे स्केल पे होता था, और यहाँ के तो एकदम चकाचौंध, और हजारों हजारों आदमी, 10,000-50,000 आदमी, कई बार लाख आदमी हो जाता था ग्राउंड में। तो उसको आप लोगों को किस तरह, आप कितने दिन प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि 10-10 दिन का डांडिया होता था, 9-9 10-10 दिन का, तो आपको मतलब बड़ा, और एवरी नाइट होना, और इट्स नॉट ए इजी थिंग, और विद सो मेनी पीपल डांसिंग इन फ्रंट ऑफ यू विथ योर ओन ऑर्केस्ट्रा एक्सेट्रा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं जो हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छा लगेगा। जी, डांडिया हम लोग पहले गुजरात में करते थे और जैसे आप जानते हैं ये गुजरात का ट्रेडिशन है, तो वहाँ पे काफी फोक फोक गाने मतलब गाते हैं। और जब हम लोग मुंबई आए इन 2000 हाँ 98 में हम लोग मुंबई आए थे। 2000 में जब डांडिया का था तो हुआ ये था कि गुजरात में हमारा नाम काफी था प्रीति पिंकी के हिसाब से, पर मुंबई का डांडिया अलग होता था। यहाँ पे लोग बॉलीवुड गाते थे नवरात्रि में, मूवीज के गाने गाते थे, ना कि माता रानी के ट्रेडिशन गरबे गाते थे। तो जब हम लोग आए हम लोग को काफी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि लोग हमको आके बोलते थे आप ये कैसे ये सीडी तैयार कर लो तो आपका अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो हमने बोला कि अगर ये ही तैयार करना है तो ये गाना वही लोग अच्छा गा पाएंगे जिनकी ये सीडीज हैं, तो आप उन्हीं के साथ गरबा कर लीजिए। लेकिन अगर आपको हमें करना है, हमारा शो करना है, तो आप हम पे भरोसा करें, हम लोग अपने हिसाब से पब्लिक को नचाएंगे अपने गानों से। तो देन दे सेड कि इट इज अ काइंड ऑफ रिस्क, सो आई सेड रिस्क पैसों का ही है तो आप मत दीजिएगा, पर मौका दें। तो उन्होंने बोला चलिए देखते हैं। एंड जो फर्स्ट ईयर था और हम लोग को अवार्ड मिला बेस्ट डांडिया अवार्ड का, तब ये हुआ था कि लोगों के पास से जो कॉम्प्लीमेंट आ रहे थे कि आज लग रहा है बरसों के बाद हमने गरबा सुना है। क्योंकि क्या होता है, गरबे तो ट्रेडिशनल है, आज से 300-400 साल पुराने गरबे हैं ये जो आ रहे हैं, बट हम लोगों ने उस उन्हीं गरबों को जो अपना रिदम है उसमें नयापन लाके आज के जमाने की बीट पकड़ के उन गरबों को ढाल दिया था। तो लोगों को वो बड़ा अच्छा लगा सुनने में और स्पिरिचुअली हुआ। और हम लोग आज की तारीख में अपने डांडिया में कभी भी फिल्मी सॉन्ग नहीं गाते, हम लोग सिर्फ माता रानी के कृष्ण के गरबे और रास गाते हैं। और उसको पूरा फेस्टिवल के हिसाब से, जो नवरात्र माता रानी का त्योहार है उसको वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग और 9 दिन और फास्ट भी हम लोग करते हैं। 9 दिन भूखे होते हैं।
सिर्फ चाय पे होते हैं, कोई भी फल फ्रूट कुछ भी नहीं खाते हैं और माता रानी की बंदगी करते हैं। So 9 days keeping fast and performing every day in the night Yes. for about 2-3 hours every night. हाँ, अभी And तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 3 घंटा हो गया है, बाकी पहले तो 4-4 बजे तक होता था। पहले तो 4-4 बजे तक होता था। तो कैसे आप मैनेज कर लेते हैं? इट्स वेरी एंड विथ सच ए हैवी डोज ऑफ वॉटेज ऑफ द साउंड सिस्टम, इतना हैवी होता है वहां, तो आदमी जब वैसे ही खड़ा होता है तो हिलने लगता है। तो आप लोग जब गा रहे हो विदाउट ईटिंग एनीथिंग, और या ये भी है कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स होते हैं उस वक्त, क्योंकि और जी नहीं, ये डिवाइन ब्लेसिंग ही होते हैं, मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ। और एक चीज मैंने वहां देखी आपके उसमें कि लोग बाग अपने शूज और चप्पल उतार के फिर गरबा करते हैं, जी। इतना ज्यादा। तो ये तो आपने जब ये शुरू किया तो शुरू में तो जैसे आपने बताया कि पैसा आपने कह दी कि हम नहीं लेंगे पैसा, लेकिन जब वो सक्सेस हुआ तो वही जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थे वही आपके संग आगे भी चले, या फिर और ऑर्गेनाइजर्स आपके संग डांडिया? नहीं, वो हमारे साथ आज तक चल रहा है। अच्छा, जी, क्या we are क्या blessed। नाम बताना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों? वो मानिक चंद है का जी? किशोर भाई, किशोर भाई मेहता, मेहता, हाँ किशोर मेहता, जी जी जितेश जी। गुप्ता, विपुल शाह, विपिन मालदे। तो वो लोग अभी भी चल रहे हैं। तो जी, और दिस शिवा इज भाई, शिवा शेट्टी, वो तो अभी तो नगर सेवक हो गए हैं। this shows the credibility and your the talent which you have shown. It's not that only you have shown the once or twice things, you are showing for last so many years and people are loving you. लेकिन इतना एक बार पूछना चाहूंगा, लास्ट ईयर मतलब इस साल, अभी तो लास्ट ईयर नहीं कहूंगा, इसी साल अभी खत्म होने वाला है, इस साल तो कोरोना था and everybody was everything was closed. So how you managed this year the Dandiya during Navratri? दिस ईयर हम लोगों ने वर्चुअल किया था, क्योंकि हमारे साथ है ना एक जिसको कह सकते हैं कि फैमिली ही है, भवन पारेख करके। तो ही केम अप विथ अ कॉन्सेप्ट सेइंग कि हम लोग वर्चुअल करते, तो वी वर नॉट वेरी कीन अबाउट इट फर्स्ट, कि वर्चुअल कैसे करेंगे, कैसे होगा, क्योंकि हम लोगों ने इतना न्यू कॉन्सेप्ट था और हम लोग ने इतना लार्ज ऑडियंस देखा है। हाउ विल पीपल रिएक्ट टू दिस, इसे के करके तो देखते हैं, एटलीस्ट पूरी दुनिया में सब लोग आजकल वर्चुअल पे शो कर रहे हैं, तो लेट्स डू इट। तो हमने बोला चलो ठीक है। तो ही गॉट दिस ऑफर फ्रॉम पेंटागन इवेंट्स। तो ही सेड कि लेट्स वर्क आउट ऑन दिस एंड आई थिंक हम लोगों का एक लौता इवेंट था कि जो बुक माई शो पे जिसका टिकट सेल हुआ, और सिर्फ 3 दिन के लिए, लास्ट 3 डेज के लिए था। एंड एक्चुअली वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि उन लोगों का भी रिव्यू था कि बहुत अच्छा इवेंट गया उनका। नहीं तो ये तो बहुत अच्छा एक नया एवेन्यू खुला, क्योंकि सी द डिफरेंस बिटवीन ए स्टेज शो एंड द वर्चुअल शो इज, स्टेज शो you have an audience which might be 10,000 50,000 a lakh, but in virtual there is no limit, it's going all over the world. So those who are there in different cities or the countries, they can watch your show without any disturbance and without any problem. तो ये एक अलग एक्सपीरियंस आपको लगा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। They have sung numerous songs for Bollywood films like हर दिल जो प्यार करेगा, रहना है तेरे दिल में, चलते चलते and Mumbai Mirror to name a few. In addition to their popularity in India, they are also very well known abroad too and regularly perform in countries like USA, Canada and the United Kingdom. Now, अब आप अभी भी फिल्मों में गाना गा रही हैं आजकल भी, या आप लोगों ने पहले गाने के बाद फिर और चीजों में डाइवर्ट कर लिया अपने को पॉप वगैरह में? आई डिडंट गेट यू, वो नेटवर्क की वजह से क्वेश्चन अच्छा, थोड़ा। yeah. No, I was saying that earlier you have sung on many films in Bollywood. जी, Is it now also you are singing in the Bollywood या nowadays? आप आजकल भी गाना गा रही हैं बॉलीवुड में? नहीं, नेटवर्क थोड़ा सा मेरे ख्याल से प्रॉब्लम दे रहा है, आई डोंट नो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है या
नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। आया? हाँ, यस, आपका नेटवर्क थोड़ा वीक है, इस वजह से प्रॉब्लम, आजकल नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। वर्चुअल्स का बस ये एक प्रॉब्लम है जो हो जाता है प्रॉब्लम, पर अब हाँ, तो आपका नेटवर्क वीक है। पर आपको, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने ये बॉलीवुड में पहले गाने गाए, अभी आजकल भी आप लोग गाने गा रहे हैं बॉलीवुड में? नहीं है, नेटवर्क इज ए प्रॉब्लम। अभी आ रहा है? हाँ, अभी थोड़ा सा दिखा था अभी। कैन यू हियर अस? आया? अब नहीं, अभी मैं वही चेक कर रहे हैं, जस्ट चेकिंग। दिस इज ए, जी जी हाँ, दिस इज ए प्रॉब्लम। यस, कैन यू हियर मी नाउ? यस आई कैन। Okay. So my question to you is कि you have earlier done so many songs, hit songs in the Bollywood. So still you are doing in the Bollywood. आपके आजकल गाने आपने रिकॉर्डिंग चल रही है. Although nowadays because of the COVID, these things might not be in that way. But still, are you doing that? Yes, yes, very much. Okay, very. क्योंकि yes, we are in fact, and काफी गाने आए भी हैं, काफी हमने रिकॉर्ड भी किए जो रिलीज होंगे अभी। जी जी। And we are waiting for them actually. Okay. Miss Printi sings in 12 different voices in the live performance, like Mahendra Kapoor, Shamshad Begum, Salma Agha, R.D. Burman, Asha Bhosle, Noorjahan, and many, many more. तो ये आपने बचपन से सीखा या ये भी आपने बाद में डेवलप किया और औरों की आवाज में मतलब गाना, डिफरेंट वॉइसेस में गाना? नहीं गोयल जी, एक्चुअली ये सब क्या हुआ है पता है आपको, कि जैसे हम लोग लाइव शोज करते थे, बच्चे थे जी। और ये सारे एक्सीडेंटल होते थे कि जिससे मुझे पता चलती थी, अरे मैं ये भी गा रही हूँ। और फिर तो क्या हुआ था, पिंकी ने वो बताया, अरे प्रीति ये गाना बहुत फेमस है, तू गा, तू अच्छा गाएगी। और होता ये था कि मैं उसको कोशिश करती थी और पीपल लाइक इट, एंड दैट्स हाउ ये आवाजों का सिलसिला चलता रहा। जैसे जब से फर्स्ट मेल सॉन्ग मैंने आर डी बर्मन साहब का गाया था, उस समय तो ये हुआ था कि हम लोग अहमदाबाद में थे, अहमदाबाद में गाते थे लाइव स्टेज शो। तो मेल सिंगर जिनका नाम अनाउंस हुआ था, वो टाउन हॉल करके एक हॉल है वहां पे बड़ा फेमस सा, वो बाहर थे, मैं स्टेज पे ऑलरेडी आ चुकी हूँ। तो आगे म्यूजिक बज रहा था काफी सारा, और मैं देख रही हूँ पूनम अंकल नहीं आए, पूनम अंकल नहीं आए। तो जैसे ही मेल का पार्ट का कॉर्ड बजा ना, तो वो एक बच्चा होता है, हाँ पब्लिक मेरे को मारेगी, तो मैंने मेल में गाना चालू कर दिया, एंड लाइक पीपल वेर ज़ैप्ड एंड सो वाज आई। तो इतनी तालियां बजी, बट मैं ये कह सकती हूँ कि वो पहली आवाज जो निकली थी वो डर के मारे ही निकली थी, एंड पीपल लव्ड इट। एंड फिर वंस मोर हो गया। अब पहले तो डर के मारे गाया था, बट वंस मोर में कैसे गाऊंगी उसको, बट फिर बोलते ना कि फिर से भी गा लिया। We will listen that song, but not right now because your network bandwidth is low, so the disturbance is there. But what she has mentioned is very clear, that how when she was performing on a stage at Ahmedabad, in the town hall, the male singer was not present, and she was singing the female song, a version of the song. And at that time, when the chord of that the male singers were supposed to sing, he was not present, and she was afraid कि it should not happen, the public will start shouting and this thing, so she started singing that. Now I think your bandwidth is okay. क्या वो वाला गाना बता सकती हैं? कोई किसी भी जिसमें लैंग्वेज को, जो भी आप सुनाना चाहें, कोई भी। हिंदी लैंग्वेज है। हाँ हिंदी है, हिंदी में जिस भी आर्टिस्ट का आप सोचते हैं वो वाला गाना। आर डी बर्मन साहब का, जी। जान जा ओ मेरी जान जा, जान जा ओ मेरी जान जा,
la 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 la। तो भाई बहुत खूब, मतलब बहुत लोगों ने फिर तो आपसे इसी की फरमाइश की होगी कि साहब आप उसमें, क्योंकि जैसे मैं लिस्ट पढ़ रहा था तो दो लोग ऐसे, दो तीन इसमें ऐसे हैं, जैसे नूरजहां जी हैं, उनकी वॉइस की जो क्वालिटी है बहुत डिफरेंट है। मतलब अगर उन्हें और लता जी को सुना जाए तो लता जी तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कोयल है, और वो तो कहाँ कितना हाई उसमें गाती हैं। और शमशाद बेगम जी की भी तो आप उनके गाने, और अदरवाइज जो आपकी भी सिंगिंग है बहुत स्वीट है। तो कहाँ वो पिया पिया वाला गाना और कहाँ ये आपने इतनी वॉइस निकाली, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होती थी गाने के बाद? हम लोगों ने बताया ना, हम लोग को सिर्फ गाना था, फिर वो कुछ भी हो, वी वांट टू सिंग। मतलब इतना डिवोशन फॉर ए सिंगिंग, इट्स रियली रिमार्केबल। Eat singing, sleep singing, and think singing, everything is singing. Very good. They were the second Indian whose show was aired live on Kenyan television, which she has already mentioned. They have also compared the dance show on ETV Gujarati named Thanganath, hosted a musical show on Gujarati, Tana Na Re Re. तो ताना इसके जी। बारे, हाँ, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, जैसे गुजरात में वो जो डांस शोज वगैरह होते थे, और एक म्यूजिकल शो हुआ था जिसका नाम था गुजरात ताना रीरी। वो मैंने और पिंकी ने कंपेयर किया था वो शो, और लाइक 10 साल हो गए उसको। जी। तो तो इट जस्ट केम टू अस कि आप लोग दोनों बहनें हैं और ये शो कंपेयर करेंगी। तो हमने बोला कि वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट इट, बट यस वी कैन ट्राई। एंड देन वी डिड, एंड इट वाज लाइक सुपर हिट शो फॉर गुजराती चैनल। नहीं, तो इसका मतलब आप गाना भी गाती थे, आप और आपने मेल वॉइस में भी गा लिया, और आपने फॉरेन की कंट्री की वहां की चैनल पे भी गाया, और शो भी आप होस्ट करते थे। तो मतलब वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इन वन स्मॉल पैक, यू आर ए ऑल इन वन, अंडर वन रूफ, एवरीथिंग इज देयर। तो जो इवेंट ऑर्गेनाइजर होंगे वो तो बड़े खुश होते होंगे आप लोगों से, कि अगर उन्हें पता है कि कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई नहीं आया आर्टिस्ट, तो आप मौजूद ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, इससे एक चीज बहुत इजी हो जाती है कि आप किसी पे रिलाई नहीं करते। हम लोग का और पिंकी का क्या है कि हम लोगों को किसी पे इतना निर्भर नहीं होना पड़ता, क्योंकि हम लोग अपने में ही एक टीम हो जाते हैं। अभी मेरे पे मैसेज आए हैं, मिस्टर दीपक गोयल सेड द प्राउड फॉर द कंट्रीमैन ऑफ देयर प्राइम मिनिस्टर, एंड देन मुक्ता वाशने से सर एक ट्रेडिशनल गरबा सुनेंगे। आपसे ट्रेडिशनल गरबा सुनने की डिमांड आई है, हाँ तो जी, हाँ प्लीज। जी। के मातारो गरबो झाकम झोड़ घूमे गोड़ गोड़ पावागढ़नी ओड़ मार लो। के मातारी ओडड़ी राती चोड़, उड़े रंग छोड़, बाबा गढ़नी ओड़ मारे लो। की माड़ी गरबे घूमे सजी सोड़ शृंगार ये माड़ी गरबे घूमे सजी सोण शणगार, माड़ी तर पगलाती पवन पकता मातारी ओढ़नी राती छोड़ उड़े रंग छोड़ पावागढ़नी ओढ़ मारे बहुत ही बहुत सुंदर, मतलब लगा कि हम भी वहीं पहुंच गए हैं जहां गर्व चल रहा है। तो अब आप एक बताइए कि कोरोना में जो ये बंद रहा, लॉकडाउन में, तो आप लोगों ने क्या किया इस लॉकडाउन में? आपके क्या एक्सपीरियंस रहे, अच्छे, खट्टे, मीठे, बुरे? तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। लॉकडाउन में हम लोग बड़े डिसिप्लिन्ड हो गए हैं। रेगुलरली स्टीम लेते हैं, काढ़ा पीते हैं,
और पहले हम लोग चाय बहुत पीते थे, अभी हम लोग ने चाय बंद कर दी। हम लोग बहुत डिसिप्लिन हो गए हैं, बहुत कुछ सिखाया इनफैक्ट। कोई भी बुरा वक्त आता है बहुत कुछ सिखा के जाता है, उसको आप कैसे लेते हो, एक टॉर्चर की तरीके से लेते हो या एक टीचिंग की तरीके से लेते हो। हम लोगों ने उसको एकदम सीखा है कि लाइफ को बहुत अच्छे से जीना चाहिए, अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। सो इट हैज टॉट अस लॉट ऑफ थिंग्स। और जो हमको आज वैल्यू है जिस चीज की, हम लोग टाइम नहीं स्पेंड कर पाते थे हमारे फैमिली के साथ, जो हम अब करते हैं। मेरे पास 8 कैट्स हैं और एक डॉग है, और माय मदर इज ओल्सो, सो हम उनका बहुत ध्यान रखते हैं। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं लाइफ में, जिससे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज योर लाइफ इज इनसाइड द हाउस ओनली, सो ब्यूटीफुल। सो बहुत सारी चीजों का वैल्यू हुआ है। और हम लोग बहुत स्वास्थ्य में ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, रेकी करते हैं, और काढ़ा पीते हैं विच इज तुलसी, आंवला, और क्या कहते हैं, Wheat grass. वीट ग्रास। वो सब बहुत एकदम प्रॉपर लाइफ हो गई है। वेजिटेबल्स बहुत खाते हैं, वी डूइंग अ सात्विक पहले लाइफस्टाइल। हम लोग का लाइफस्टाइल सात्विक हो गया है। पहले इट वाज नॉट सात्विक एट ऑल, बट सात्विक करने से क्या हुआ कि हम लोग को खुद ही एक्सपीरियंस हुआ है कि इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग ऑल टुगेदर। नहीं, पर इट्स मतलब इट्स समथिंग वेरी अमेजिंग कि you both have kept your moral high, because the otherwise because of my show, many people who have joined, even the artists, they were quibbling, they were saying, and they were having pain that because the revenues were stopped, and they says that it's a very, very difficult time, and especially for those artists who are not that well off. But otherwise, those who are doing means keeping their mental health so strong. So it is definitely a very good learning during this 8-9 months. Now, they, they, uh, they released a Sufi single Maula Maula, which we have already mentioned, in January 2015 through G Music, and Garba single Savaria through Times Music in October 2015. So in 1 year, you have done both in one is January, in one is October. That is 2015. Oh, okay. This Savaria was also of the pop songs? Yeah, no, it was Gujarati Hindi song. Okay. सावरिया गुजराती था, दूसरा सावरिया जो टाइम्स म्यूजिक से निकला था, हाँ, वो हिंदी था। अच्छा, तो उसका कोई सुनाना चाहेंगे? हिंदी सुनाते हैं जी। तेरी प्यारी बातें सावरिया, चोरी चोरी सुन के मेरा जिया, नई नई धुन सुनाई और गुनगुनाई, तू मेरा पिया हो सावरिया। वेरी नाइस। आप मतलब मैं तो ये कह सकता हूँ कि माँ शारदा की आप पे दोनों पे ऐसी कृपा है और ऐसी बनी रहनी चाहिए। बहुत ही सुरीला आप जिस तरह गा रहे हैं। On 30th April 2017, they released a new music video with a very unique concept and for a very noble cause. They shaved their heads and have featured completely bald in the video Hangama Kyo Na Kare. They have taken this bold step to boost the confidence of women suffering from cancer who lose their hair due to the treatment they undergo. बहुत ही नेक काम। मतलब ये तो एक क्योंकि कहना हर आदमी बहुत कुछ कहता है, पैसा भी दे देता है इन चीजों के लिए, लेकिन अपने के ऊपर करना कि आपने अपने हेयर्स को शेव करा के और उसको प्रोग्राम किया, ये तो एक बहुत ही यूनिक चीज हुई होगी। और बहुत ही मतलब ये आपका पास आइडिया कहाँ से आया कि ये आप करना चाहेंगे इस तरह का, कि या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे देख के आप लोगों को लगा कि हमें करना चाहिए? जी, ये आइडिया जैसे मैंने बताया था, भवन पारेख है जो हमारे साथ आज 20 साल से ही इज बीन विद अस। तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा वुमेन का है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि कैंसर पेशेंट वुमेन्स होती है जो अपने बाल, उसके ब्रदर को भी कैंसर हुआ था, एंड द फैमिली गोज थ्रू इट। इट इज नॉट ओनली द पर्सन कि जिसको हुआ है, बट द एंटायर फैमिली सफर्स। और
बोले कि फिर उनको दवाई का भी असर नहीं करता है, क्योंकि वो लोग सैड हो जाती है, हमारे बाल चले जाएंगे ये सोच सोच के। तो बोले एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो बोले पर उसके लिए एक प्रॉब्लम है कि बाल लेके अगर ये गाना करेंगे तो मैसेज नहीं मैसेज नहीं पहुंचेगा। और पिंकी के एज यू कैन सी नाउ कि लंबे बाल है, घने बाल है। तो पिंकी बोले भवन अगर ऐसा है तो शेव कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैसेज पहुंचाना ही है और अच्छी काम के लिए क्यों नहीं, बाल तो अपने हैं आ जाएंगे, है ना। बट अगर मैसेज सही से पहुंचेगा तो तुम्हारी बात सही है। मैसेज ये पहुंचाना था कि आपके बाल हो कि ना हो, आप जिंदगी को अच्छे ढंग से देख सकते हैं, प्यार से देख सकते हैं। देयर इज नथिंग लाइक, लो औरतों के लिए बाल इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रृंगार होता है ना बाल। हाँ, श्रृंगार होता मतलब है। ये है कि औरत के अगर बाल नहीं है तो वो सुंदर नहीं है, नहीं है, मन की सुंदरता होनी चाहिए। नहीं, बाल तो है नहीं है डजंट मेक अ डिफरेंस। बट भगवान ने आपको ये जन्म दिया है, ये सुंदर जीवन दिया है। आप देखते हैं जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो लोग इस बीमारी से भी सरवाइव कर लेते हैं, क्यों कि वो लोग पॉजिटिव हैं। और बाल आज नहीं, और जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है बाल आ जाते हैं। हम इतने सारे पेशेंट्स को मिले हैं कि जो लोग सर्वाइवर हैं, वॉरियर्स हैं, कि दे हैव गॉट लवली हेयर बैक, बट दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइम पीरियड, और ये ट्रीटमेंट की वजह से चले जाते हैं। टू टेल देम कि डोंट लूज होप, डोंट और लूज होप, बिलीव बी इन योरसेल्फ। पॉजिटिव। और दवाइयाँ काम करती हैं जब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, तो आपका अंदर की भी सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करती है। सो हम लोगों ने ये गाना बनाया बॉल्ड होके कि मैसेज पहुंचाए कि डोंट वरी, लाइफ इज स्टिल ब्यूटीफुल। बाल हो के ना हो, सुंदरता दिल की होती है, मन की होती है, और आंखों की होती है। आंखों की होती है। आंखों आंखों पे हमारा पूरा मेकअप है, बाकी पूरा सॉन्ग इज ब्लैक एंड व्हाइट। एंड द कॉन्सेप्ट बाबा ने जो किया है, लवली कॉन्सेप्ट है। आप लोग भी जाके यूट्यूब पे देखिए गाना हंगामा क्यों ना करें, इस ब्यूटीफुल सॉन्ग। और मेरे को बहुत सारे मेल्स आए जिनके कैंसर पेशेंट्स थे, हम लोग को बहुत मेल आए, उन्होंने कहा कि हम लोग इसको देख के इंस्पायर्ड हो गए कि वी टेक लाइफ इन डिफरेंट वे नाउ, वी थिंक अबाउट इट पॉजिटिवली। मतलब ये एक समाज के लिए हमें लगा कि हमारा कर्तव्य होता है कि बीइंग एन आर्टिस्ट अगर हम लोग कर सके तो। और इसने बड़े हैप्पीली, हाँ भवन लेट्स गेट इट बोल्ड। और हम दोनों ने बोला पिंकी आर यू श्योर, मैंने मैंने खुद इसको एक बार पूछा पिंकी पक्का, तो बोलती हाँ प्रीति ठीक है करते हैं। एंड इंस्टेंटली ये गाना हमने ऐसे कर लिया था। बहुत बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि देखिए कहना और जो पिक्चरों में दिखाते हैं वो तो ऊपर एक बाल बना लेते हैं अपने को या विग पहन लेते हैं, लेकिन आप रियल में बाल कटवा के ये शो करता है कि मन की सुंदरता औरों में तो है, आपके अंदर भी कितनी मन की सुंदरता है, आपका मन हृदय कितना कोमल और सुंदर है कि आपने औरों की। क्योंकि आज जैसे आपने देखा होगा और मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन का मैं चेयरमैन हूं, तो मैं देखता हूं कि कितने एक पीड़ा होती है उस परिवार में जहां कोई भी किसी वजह से भी कोई सफर करता है। आजकल लोग बाग कोविड में अगर एक कोई जाता है तो उनके उसके घर में या उसकी फैमिली में कितना पीड़ा होती है। तो कैंसर एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा अभी भी उसका क्योर नहीं हो पाता, लेकिन होता है। लेकिन उसमें जब कीमोथेरेपी होती है, जैसे आपने बताया बाल चले जाते हैं उस वक्त, और खासकर जो औरतों का श्रृंगार है और उसमें उन्हें बालों के बिना, तो जो डिप्रेशन आता है उससे भी बिल्कुल सही बात है, इम्यूनिटी खत्म हो जाती है और दवाइयां असर नहीं करती। तो आप लोगों ने एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर का काम किया। हेड्स ऑफ टू यू। आई मस्ट से कि मतलब अल्लाह ताला, भगवान, ईसा जो भी है वो लोग, वो आपको पूरी इतने ज्यादा दुआएं आपको मिलेंगी, इतने आशीष मिलेंगे, क्योंकि आप इतना अच्छा काम किया है। क्या उस गाने को हम थोड़ा सा सुन पाएंगे? जी हाँ श्योर। जी, हाँ जी। होती है यूं सनसनी बदन में, रोवा रोवा जलता है, मस्ती में जब झूमने लगे दिल, ऐसे में सब चलता है, जोशीला दिन रात शीली है, जोशीला दिन रात शीली है, हंगामा तू हंगामा, हंगामा क्यों ना करे, हंगामा हम क्यों ना करे। बहुत खूब। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस गाने को सुन के जो
पीड़ित हैं उन्हें तो हुआ ही होगा, उनके रिश्तेदारों को, उनकी फैमिलीज को और बाकी लोगों को भी एक एहसास हुआ होगा कि हम सबको मॉरल सपोर्ट, अगर हम वैसे नहीं कुछ कर सकते, हम लोग डॉक्टर नहीं है, लेकिन हमें भगवान ने जो भी हमें एक हमें एक हुनर दिया है, अगर हम उस हुनर से वो जो आप लोगों ने दिखाया है, मैं सोचता हूँ ये मैसेज जो आज आप दे रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और जो आगे भी देखेंगे, उनको ये भी जाता है कि आप जिस चीज पे भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप हर तरह से कहीं ना कहीं समाज सेवा कर सकते हैं। ये नहीं सोचिए कि अरे हम तो आर्टिस्ट हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैंसर से हमारा क्या लेन देन, हम डॉक्टर नहीं है। लेकिन जो आपने किया है तो डॉक्टरों से भी बहुत बड़ी बात करी। बहुत 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 मैं तो आभार करूंगा आपके लिए कि आपने इतनी बड़ी बात की। And they have so many achievements and awards. If I will read everything, it's not possible. But yes, I would like to highlight few of them. They received the Best Jodi Award at 13th Transmedia Gujarati Screen and Stage Award on 3rd March 2014. They also received Best Dandiya Award at KF Business and Entertainment Global Awards on 30th May 2016. They awarded Best Playback Singer with a song launch at 10th Gaurav Gauravanta Gujarati Awards 2017. Correct? Yes. They were honored with doctorate at Second Global Business Leadership Forum 2018 on 10th April 2018. इसके बारे में कुछ बताएंगे? डॉक्टरेट जी, संगीत में हम लोगों को मिला है। तो आपको डॉक्टरेट मिली है? जी, हम तो लोगों ने क्लासिकल भी सीखा है। जी, जब हम लोग बच्चे थे, गुजरात में थे, अहमदाबाद में, तब हम लोग ने वहाँ पे गांधर्व महाविद्यालय से विशारद कंप्लीट किया है। फिर अच्छा। जैसे आप जानते हैं, सर के पास सुखदेव चतुर पंडित जी के पास से हमने रियाज़, म्यूज़िक, गाना, शास्त्रीय संगीत सब किया। फिर उसके बाद ये फॉर्म भर रहे थे हम लोग, तो हम लोग का एक दोस्त है विश्वास जुल्का करके, तो उसने बोला प्रीति यू शुड अप्लाई फॉर दिस। I said, Vishwas, we don't have any knowledge about doctorate degree and all. He said, I have a friend, I'll speak about it. And then he was the one कि जिसने हमको फोर्स करके इसमें सबमिट करवाया फॉर्म। एंड वहां पे वो लोग आपकी पूरी लाइफ जर्नी देखते हैं, आपका वर्ड्स देखते हैं, आपने क्या किया है, वो सब देखने के बाद आपको ये डॉक्टरेट का डिग्री मिलता है। मीन्स पूरी तरह से सक्षम, पूरी तरह से पूर्ण संगीत में जो भी नॉलेज है हमको, जो हम गाते हैं, जो हम प्रेजेंट करते हैं, सबको देख के उन्होंने फिर हमको ये तो ये दोनों को मिली है? आप दोनों दोनों को, को? जी दोनों अच्छा, को। तो पहले आप बताते तो आपके हम लिखते डॉक्टर प्रीति एंड डॉक्टर पिंकी। वेरी नाइस। तो ये चीजें देखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता जिंदगी में। जब आप उस आयाम पे पहुंच रहे हैं जहां लोग बाग आपकी कला को देखते हैं, आपके हुनर को देखते हैं, आपने जो कार्य किए हैं उन्हें देखते हैं, और उसके बाद वो डॉक्टरेट देते हैं, ये है ये ये एक समाज ने आपको एक बहुत बड़ा खिताब दिया। मैं सोचता हूं कि इससे भी एक आप लोगों को बहुत ज्यादा मॉरल बूस्टर मिला होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है मतलब मैं तो ये कहूंगा छोटी उम्र में आपको डॉक्टरेट मिली है। बहुत आगे भी आप लोग बहुत आगे बढ़े। थैंक यू। They were also awarded as Best Playback Singer with 8 Quality Mark Award 2018, selected as Youth Peace Messenger and honored as World Peace Messenger by World Peace and Diplomacy Organization on 22nd June 2019 as a part of Third Global Business Leadership Forum. ये क्या चीज हुई, इसका थोड़े बारे में बताएंगे कि आपको जी, जब ये हंगामा क्यों ना करे किया था ना हमने ये गाना, जी तो वर्ल्ड पीस के हिसाब से हम लोगों को यूथ को मोटिवेट करने के लिए ये अवार्ड दिया गया था, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोग, आई थिंक वी आर द इस जमीन पे हम लोग फर्स्ट इंडियन है और फर्स्ट सिस्टर्स हैं जिन्होंने ये बोल्ड स्टेप लिया था पूरे दुनिया में। अगर आप कह सकते हैं कि ऐसा मीडिया में आके एक नाम होने के बाद आपने पूरा बोल्ड सर करके एक पब्लिक मैसेज भेजा था। एंड प्लस एनवायरनमेंट के लिए भी हम लोग मतलब म्यूजिक के अलावा और भी जो है काफी करते हैं, डोनेशन शोज करते हैं, डोनेशन चैरिटी शोज करते हैं, और बहुत ओल्ड एज होम्स के लिए, चाइल्ड के लिए, एनिमल्स के लिए भी एनिमल्स काफी के करते लिए हैं हम बहुत लोग। करते हैं।
हाँ, एनिमल बॉम्बे एनिमल एसोसिएशन के लिए बहुत करते हैं। मुंबई वो एनिमल वो तो लग भी रहा है, जब भी आपने बताया पिंकी जी कि आपके इतने सारे पेट्स हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेनका गांधी जी आई थी मेरे शो में, एंड वो बता रही थी कि प्रॉब्लम क्या है कि आजकल सोसाइटीज अलाउ नहीं करती, घरों पे अगर डॉग्स होते हैं, पेट डॉग्स होते हैं या कैट्स होती हैं, तो वो लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जबकि फॉरेन में मैंने देखा है, वहां पे तो पेट्स को बिल्कुल एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट किया जाता है, और वो इन जी लोगों की अलग अलग वो है, जिससे मैं बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी बोथ आर एनिमल लवर्स। ये एक फैमिली का पार्ट बन जाते हैं। सिर्फ इतना है कि ये लोग बोल नहीं पाते हैं और हम लोग बोल लेते हैं, और जी जो लोग को नहीं पसंद है उनको नहीं पसंद, लेकिन जिनको पसंद है आपको उनको देखना चाहिए। दे लिटरली 24-24 घंटे, जैसे हम लोग भी बैठे रहते हैं, अगर हमारा कोई भी पेट बीमार होता है तो हम लोग सारा काम एक तरफ हो जाता है, हम जी लोग पूरा टाइम उसमें देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नौकरों पे डिपेंड करते हैं, नहीं, सारी दवाइयां अगर पिंकी दे रही है तो खाना मैं देती हूँ, मतलब हम लोग काम बांट लेते हैं, लेकिन वी टेक केयर ऑफ हिम एज अ फैमिली पर्सन, और बहुत ना बहुत तो घर के, इवन बाहर बिकॉज के भी। आज के जमाने में अनकंडीशनल लव तो सिर्फ पेट्स ही दे पाते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज कंडीशन कि आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे। तो आपने मेरा लाइक किया, मैंने आपका वीडियो लाइक किया, इट इज ऑल लेन देन, बट एक इन्हीं लोगों में एक वो प्यार बचा है कि आप इनको प्यार देते हैं और तो प्यार मिलता उन है। लोग की तो लाइफ ही हम लोग को देख के बीतती है पूरी। वी आर द वर्ल्ड फॉर देम। बहुत बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके। मतलब दिस इज, ये शो करता है कि मैं अगेन अगेन आई विल बी रिपीटिंग, दिस शोज द फैमिली बैकग्राउंड ऑफ योर्स, हाउ लकी your parents. I must say that they have given you such type of quality and thinking, जो morals हैं आप में, यही वैल्यू आज की यंग जनरेशन में सब में आनी चाहिए। एंड वी ऑलवेज बिलीव दैट इफ द फैमिली, बिकॉज दे आर द फर्स्ट टीचर ऑफ द any of the youngsters, if they give the moral values to the child, तो आज जो आप लोगों के व्यूज हैं वो देख के लग रहा है कि कितने बहुत बढ़िया आपके पेरेंट्स ने, आपके दादाजी ने आपको इतनी अच्छे वैल्यूज दी हैं, जिस वजह से आप इतने अच्छे ख्यालात, सिर्फ गानों में ही नहीं, आपने कैंसर पेशेंट्स के लिए इतना बढ़िया काम किया, पेट्स को भी लव करते हैं, बहुत अच्छी चीज है। और आप उसको ओल्ड एज है ओल्ड एज होम ओल्ड एज होम ये है कि ओल्ड हम एज लोग होम। का, हाँ, हम लोग का ये कॉन्सेप्ट है, हम लोग की ये सोच है, ओल्ड एज होम दुनिया में होने ही नहीं चाहिए। क्योंकि एक बात बताऊं गोयल जी, आप जब बच्चे हैं, आपके माँ बाप, आप बहुत गलती करते हैं, आपके माँ बाप ने फिर भी थके नहीं, थके हारे आते भी हैं तो भी आपको पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया। उन्होंने, उनको कंटाला नहीं आया, तब तो वो जवान थे, फिर भी उन्होंने आपको टाइम दिया, आपको बड़ा किया। तो जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, वो लोग बच्चे हो जाते हैं, दे बिकम लाइक किड्स। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे परेशान होके या आप अपना करियर देखने के लिए उनको ओल्ड एज होम में छोड़ दें। दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग विच यू शुड नॉट डू। वही हम स्प्रेड करना चाहते हैं हाँ, लोगों इंडिया को। ऐसा रिच कल्चर वाला कंट्री है, वहां पे तो ये कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए ओल्ड एज का। इतना प्यार होना चाहिए, इतना यूनिटी होनी चाहिए फैमिलीज में कि आप अपने माँ बाप को भेज ही नहीं सकते। अगर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं आपकी बीवी के साथ या किसी चीज के साथ, दैट डजंट मीन यू सेंड देम टू ओल्ड एज होम। नो, दैट कैन बी सॉर्टेड आउट। यही हम लोग का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग लेकिन यंग जनरेशन हमेशा एक ही बात कहती है, आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया। ओल्डर जनरेशन वो ये भूल जाते हैं, जो अभी आपने कहा कि जब आप छोटे थे तो वो माँ सोती नहीं थी रात भर, अगर बच्चे को जरा बुखार भी हो जाता है, जी जी, बहुत नहीं बहुत वो कुछ होता। जी नहीं, वो बच्चे भूल गए हैं, उनको वो एहसास दिलाना चाहिए, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि आप पैदा होते ही लिखने नहीं लगे थे, आपके माँ बाप ने पढ़ाया आपको। आपको कमाने ही जितना बड़ा किया, आप जाके कमा पाते हैं, आप खा पाते हैं, पी पाते हैं, घूम पाते हैं, आपको इस काबिल बनाया। अब आपको उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। नहीं, और ये तो उन्होंने बहुत। ये बार्गेन नहीं सोचा था कि जी आपको इस तरह से करेंगे तो आप उनको पालोगे, नहीं, उन्होंने अपना आउट ऑफ फर्ज लव। समझ के किया था, आउट ऑफ लव। तो आप भी प्यार से ये कीजिए अपने माँ बाप के लिए। जी। और क्या होता है कि माँ बाप लाचार हो जाते हैं, इसलिए वो आपके पास, आपको उन्हें सहारा देना है। जो लाचार नहीं होते हैं उन्हें आपके सहारों की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन प्यार और प्रेम तो रहना ही चाहिए। वेरी हाँ, नाइस। एंड
they were also honored and received the Best Playback Singer Award on 27 November 2020. That is very recently. Yes, At, lovely. at 10th Bharat Ratna Dr. Ambedkar Awards 2020 from Member of Parliament श्री रामदास अठावले जी. अच्छा, अठावले जी ने आपको अवार्ड दिया, वो जी। भी हमारे शो पे आ चुके हैं. क्या और बात है। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया इंसान है वो, और बहुत केयर करते हैं सबकी. जी, तो जी। ये तो लेकिन लॉकडाउन चल रहा होगा उस वक्त, ये अवार्ड वर्चुअल मिला आपको या? नहीं, नहीं नहीं, नहीं, we went to we receive went it. there. There were only 150 people. ओके ओके अराउंड 150 लोग, बहुत कम लोग थे उधर, जी. जिनको अवार्ड मिलना था, उन्हीं लोगों को बुलाया था, और मीडिया थी और सर थे. Okay, very nice. The only playback singer and dandiya singer to perform in Big Boss House of Big Boss Session 14 episode telecast on Color TV on 24th October 2020. That is 2 months back. Yes. Okay. तो वो क्या एक्सपीरियंस था, वो आपने क्या किया है उसमें? अरे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. मैं पंकज जी को थैंक्स बोलूंगी कि उन्होंने, एंड योगेश लखानी जी, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी. ये योगेश लखानी जी, ब्राइट Bright Waving एडवर्टाइजिंग वाले जो होर्डिंग्स हैं. जी जी और कलर्स के पंकज जी हैं. जी. उन्होंने ये हम लोगों को बोला था कि इस तरह से बिग बॉस में करना है करके, तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो, लाइक द फर्स्ट थिंग आल्सो, बिकॉज़ पिंकी बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन है, एंड द फर्स्ट थिंग वी सेड यस यस वी वांट टू डू इट. क्योंकि बिग बॉस में आज अगर आप देखें तो 14 साल से चल रहा है ना, तो दिस इज फर्स्ट एवर कभी भी एक लाइव परफॉर्मर आया है वहां पे गाने. और मैं और पिंकी कह सकते डांडिया हैं के कि डांडिया के दौरान. इट वाज अ डांडिया पहली बार इन लोगों ने किया था, नवरात्रि स्पेशल हम लोगों ने किया था. सो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. तो आप अंदर गए थे बिग बॉस हाउस के हाँ अंदर? जी. अच्छा. पर हम लोग को क्या था, ग्लास की वो बैरिकेड्स लगी हुई थी, क्योंकि जो अंदर है वो लोग ऑलरेडी टेस्ट पास करके 14 दिन क्वारंटाइन करके उनके बाद उनको रखा है. तो हम लोग बाहर से जब बिग बॉस के घर में हमको भेजा था, तो एक ग्लास कैबिन बनाया हुआ था, उसके अंदर हमको परफॉर्म करना था, एंड इट वाज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस. People were dancing. This show is all about the personality, and I love watching this. And we did the show there only, so it was a good. और वहां पे भी हम लोगों ने, जो आप हमारा इसका वीडियो देखेंगे, उसमें हम लोगों ने जो अटायर किया हुआ है, वो जटाएं लगाई हैं बालों की, और शिव शक्ति का रूप किया हुआ है. जैसे आप साधु नहीं देखते, जी जी. वो साधु का मतलब शिव और शक्ति दोनों मिल जाती हैं. तो नवरात्र का टाइम था, और बिग बॉस से अच्छा माध्यम क्या है शिव शक्ति को रिप्रेजेंट करने का, तो हमने वैसे किया था. YouTube पे है वीडियो सब. जी, उसमें उसका एक सुनाना चाहेंगे, एक थोड़ा सा एक लाइन? हाँ श्योर. हाँ. बिग बॉस में जो गाया था, बिग बॉस में हम लोगों ने हिंदी डांडिया गाया था. क्योंकि वो बता रहे थे कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जाता है, जी जी. तो आप गुजराती भी मिक्स कर सकते हैं. तो हम लोगों ने 45 मिनट्स का परफॉर्मेंस दिया था, जिसमें गुजराती हिंदी मिक्स था, है ना. तो ये स्पेशली बिकॉज ऑफ द चैनल का डिमांड था, दैट इज द जी. रीजन वी डिड हिंदी आल्सो. आधा है चंद्रमा. आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा. बहुत खूब, बहुत खूब. And they have done so many movies, very hit songs. I would just name few. One everybody knows, पिया पिया. Then मुझे कुछ कहना है, from movie मैंने कोई जादू नहीं किया. Then रहना है तेरे दिल में, चुरा चुराया दे, from सैफ अली खान, सनार माधवन and दिया मिर्जा. आप मुझे अच्छे लगने लगे, थैंक यू, ऋतिक रोशन और मीशा पटेल. आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तातैया, गोविंदा एंड जूही चावला. अनर्थ, बेवफा बार में संजय दत्त. बधाइयो बधाई, जोगन जोगन, अनिल कपूर एंड कीर्ति रेड्डी. कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चोरी चोरी, फरदीन खान. अब के बरस, होगा होगा, आर्यन बब्बर. चलते चलते तुझ पर, गगन से, शाहरुख खान एंड रानी मुखर्जी. थोड़ा तुम बढ़ो थोड़ा हम,
तौबा तौबा, इश्क कयामत, 100 रुपया का एक स्माइल, फन, ऐसे करें, मिस इंडिया, मैन इश्क में, तोशा म्यूजिक एल्बम, the music albums, My Friend Ganesha 3, Department, Kammo, Mumbai Mirror, and My Krishna Hoon, Main Krishna Hoon. That is the title song. Forthcoming songs for films, Radhe Shyam Sitaram, Raje, Chandu is in Malayalam, Panchi, Dil Dhoondta Hai, Aur Fir Ek Din, Jindagi Ban Gaye Ho Tum, London Boy. And they have done the pop albums, Jhoom Mein Jahan, Mujhe Piya Ki Yaad Sataye, Panghad, Jakhm झोल चक्कर चल गया विद सोनू निगम, कभी अंबे बनके, that is devotional, ढोल मस्ती डांडिया, सांवरिया, लाली लीला, गुजराती प्ले, ब्रिज को बिरजू, भोजपुरी, and title songs of TV serial कोई अपना सा, and द घर की लक्ष्मी, बेटियां on ZTV, and jingles like VIP, Footloose, etc. Thank you very much कि आप बस चलते चलते पिया पिया की एक लाइन आप सुना के मैं बस कहना चाहूंगा कि एक लाइन जरूर आप सुनाएं पिया पिया की, जो भी आप सुनाना चाहें। पिया पिया मैंने सुनाया, मैं आपको मैंने कोई अच्छा, सुनाती हूँ, तो ठीक जो है भी जी? हाँ जी ये हमारा एक नया एक सिंगल आ रहा है, कवर आ रहा है, वो ये गाना इस तरह से हम लोग गा रहे हैं, तो जी वो सुनाइए प्लीज। ठीक है। मैंने कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे आया पिया, अखियां मिला के तूने दिल को चुराया, लूटा 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 मेरा जिया, ओ मैंने कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे आया पिया, आया रे आया कोई आया रे, चुपके से दिल में समाया रे, सपनों में आके मेरे दिल को किसी ने चुराया 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 रे, चुराया 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 रे, चुरा के दिल के गितागे, रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में। Thank you very much. Such a nice talking to you. To be very frank, we are doing programs, so many programs, but today it was one and all because you have spoken about the music, you have spoken the devotion towards your gurus, devotion to your family, devotion even to the Honorable Prime Minister, the country, and how you are devoted to your music and the songs, as well as your devotion and your work towards the cancer, and as well as for the pets, the animals, environment, old age homes. Such a nice souls you both are. God bless both of you. And I'm sure our viewers got a very, very different experience on today's Sunday, because this type of people are in our country. They are so big celebrities, but they are so simple, down to earth. God bless them. So today's program, which has been live telecasted by V4 News, Global TV, V4 Stream, Malnadu TV, Newsgaon se Samvad Sarokar News, as well as it was shown live on Facebook and YouTube. And our endeavor is to bring to you every day new topic. And tomorrow's our topic is media conference with Lal Goyal, role of youth in youth development. And the chief guest of the tomorrow's program is Mr. Rakesh Kumar Jha, Civil Service Coach, Managing Director, Discourse Academy, Delhi, along with 8 youth guests, youngsters who are going to they raise their views and they will listen what the chief guest has to say. So please tune in tomorrow with media conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. Thank you very much, Preeti ji and Pinky ji, Dr. Preeti and Dr. Pinky, for joining and giving your such a enthralling views and your singing without any music, without any track. Really, hats off to you. Thank you very much. Namaskar. Thank you.